Hello and welcome. You're watching Good Morning India. I'm Rishika Barua. Let's get you up to speed with the top headlines we're tracking this morning. The next round of government-farmer talks will be held today. Ahead of talks, the government of India has toughened its stand. Farm union leaders reiterate their foremost demand remains the withdrawal of farm laws. While the government says that it held multiple consultations with stakeholders before passing the three controversial farm laws, a response to an RTI query filed by NDTV says the government does not hold any record in this matter. Mutant strain of coronavirus now in India. 6 positive UK passengers have the mutant strain. The woman who returned from the UK and took a train to Andhra Pradesh has the UK COVID variant. The government has warned against New Year parties. Current vaccines will work, says the government. The Uttar Pradesh government's controversial anti-conversion ordinance has transformed the state into an epicenter of the politics of hate. 104 former IAS officers write an open letter to Chief Minister Yogi Adityanath. And a fresh cold wave is expected to sweep northern India. Well, the big story that we're tracking today, the government farmers' next round of talks are scheduled to be held today. This, remember, will be the 6th round of talks between the government and the farmer unions. Ahead of these next round of talks to end the deadlock over the new farm laws, the government, we're told, has toughened its stand. The farm union leaders have also reiterated that their foremost demand remains the withdrawal of the farm laws, a mechanism to be adopted to make remunerative MSP, the minimum support price that is recommended by the National Farmers Commission, into a legally guaranteed entitlement for all farmers and agricultural commodities. So this, of course, is going to be our top focus story. Sunil Prabhu joins us for the very latest. Sunil, all important 6th round of talks there between the farmer unions and the government. What we're, however, understanding at this moment is that the government has toughened its stand and the farmer unions too remain firm that they want nothing short of these laws being repealed. Well, actually, both sides have taken hardened positions and we'll have to wait and see who breaks the ice. I think ultimately it is a matter which is now being addressed by the Supreme Court. They also will be definitely looking at the deliberations in terms of the outcomes between the government and the farmers. The government is quite adamant on its position that there's no question of the repeal of the farm laws, but they're ready to amend it. As we have reported, they were even looking at legally enforcing the minimum support price. So these are certain clauses that will have to be worked out with the farmers when they have a discussion today. The farmers, of course, are still hell-bent on nothing short of repeal. So how do they go forward on these aspects is something that ultimately the government as well as the farmers, while they have these deliberations this afternoon, will be able to take it forward at the stage of a discussion. And hopefully they'll be able to find some solution. While, of course, there are some who are quite skeptical about the entire outcome and saying that this is basically a time pass before it goes to the Supreme Court. But either way, the government as well as the farmers after a long time resuming talks, and hopefully we will see some kind of outcome if the government as well as the farmers relent a little bit. All right. So the 6th round of talks will be held at 2 p.m. this afternoon. Appreciate you, Sunil, for joining us for the very latest. We'll keep coming back to you for more updates. Both sides, remember, have hardened their stance ahead of these talks. Whether or not these talks will actually help in ending this stalemate is, of course, a question that remains to be answered. Meanwhile, Union Defence Minister Rajnath Singh, he has given an interview to news agency ANI. Let's listen into what he said. देखिए, आज़ादी हासिल होने के बाद जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, सिक्योरिटी को सवाल को लेकर मैं किसी के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता। हाँ, इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में नंबर 1 पर रहा है और हम जितनी अधिक ताकत और सुविधा
अपनी जो है डिफेंस फोर्सेस को मुहैया करा सकते हैं, वो हम कराने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये सही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक ब्लैंक चेक दिया गया है, एक ओके दिया गया है कि आपको जो कदम उठाना पड़े सिक्योरिटी के लिए आप उठा सकते हैं? नहीं, हमें अपने सेना के ऊपर पूरा विश्वास है जी। कि जहां संयम की आवश्यकता होती है वह संयम का परिचय देते हैं, जहां शौर्य की आवश्यकता होती है शौर्य और पराक्रम का भी परिचय देते हैं। इनके ऊपर पूरा हम सबको विश्वास है, इसलिए किसी का हाथ बांधने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। और ये जो कुछ भी बातें मैं बोल रहा हूं, ये मत समझिएगा कि केवल पब्लिक कंजम्पशन के लिए बोल रहा हूं। जो कुछ भी बातें बोल रहा हूं एकदम बिल्कुल दिल की गहराइयों से बोल रहा हूं। आप गए थे वहां पर? आप लद्दाख गए? लद्दाख में गया था और वहां मैंने अपने सेना के जवानों से भी मैंने बातचीत की। आपको उस वक्त कैसा लगा जब आप जानते थे कि वहां पर हमारे सैनिक जो हैं वो दे वर टेकन अबैक, दे वर टेकन बाय सरप्राइज, और जो गलवान में हुआ उससे दुख हुआ जरूर, लेकिन उस वक्त जवानों का जो हौसला है वो बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी थी? हौसला हमारे जवानों की बढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं थी। जब मैं गया था हमारे जवानों का हौसला बुलंद था। और वही मैं कहता हूं, कुछ कूटनीतिक कारण होते हैं और सिक्योरिटी से रिलेटेड सवालों का एकदम बिल्कुल खुलकर जवाब देना, खुलकर बोलना, या कभी कभी कुछ अपनी मजबूरी भी होती है, कुछ अपनी सीमाएं भी होती हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे सेना के जवानों का हौसला बुलंद था और आज भी है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय इस बार हमारी सेना ने दिया है, वो संयम का भी, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अभी चाइना जो है प्री अप्रैल 2020 पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि वो हटेंगे। तो ऐसे में सर्दियों के वक्त क्या आप समझते हैं कि गलवान जैसा इंसिडेंट फिर से हो सकता है? देखिए, मैं इतना ही देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सेना देशवासियों का मस्तक नहीं झुकने देगी। क्या क्या हुआ है मैं खुलकर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। लेकिन भारत वासियों का मस्तक झुका नहीं है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सर, आपने अभी हाल ही में नॉर्दर्न फ्रंटियर की बात और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, ये हमारी बात को मैं समझता हूं सीमा पर बैठा हुआ सेना का जवान भी सुनेगा तो कम से कम ये फक्र के साथ कह सकेगा कि हमारा जो रक्षा मंत्री कह रहा है वह सच बोल रहा है। जी। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल, यहां पर भी ट्रांसग्रेशंस के थ्रेट्स हो सकते हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट सैटेलाइट्स के जरिए डेटा एनालिसिस करके वो देख चुके हैं कि वहां पर एयर स्ट्रिप्स बन रहे हैं चाइना के, वहां पर रोड डिप्लॉयमेंट है, वहां पर फोर्सेस जा रही हैं। क्या हमारे फोर्सेस वहां पर उसी नंबर के साथ और उसी मतलब वैसे ही सक्षम है टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स? देखिए, भारत और चीन के बीच बाउंड्री को लेकर परसेप्शनल डिफरेंसेस लंबे समय से रहे हैं। अच्छा रहा होता कि यह डिफरेंसेस समाप्त हो गए होते, ताकि जिस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं इस प्रकार के हालात पैदा ही न होते। वैसे पिछली सरकारों ने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी बातचीत करने की, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल सका था। हां, यह बात सही है कि चाइना अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जितना मैक्सिमम हो सकता है वो पहले से जो है करता चला रहा है, लेकिन भारत भी सीमा पर रहने वाले अपने नागरिकों की सुविधा के लिए, सीमा पर पेट्रोलिंग करने वाले अथवा सीमा की सुरक्षा करने वाले अपने जवानों के लिए भी इधर बहुत ही तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। हम किसी देश से पर आक्रमण करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, इस सोच के साथ नहीं। लेकिन यदि पेट्रोलिंग करने हमारा जवान जाता है तो उसकी सुविधा का हमको ध्यान देना पड़ेगा, और साथ ही साथ सीमा पर रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं उनकी भी सुविधाओं का ध्यान हमको देना पड़ेगा। उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सीमा पर ये आवश्यक है, और वह काम कर रहे हैं। सर, आपने कहा था कि पाकिस्तान और चाइना जो है एक मिशन मोड पर काम कर रहे हैं बॉर्डर बाउंड्री को, उनके डिस्प्यूट्स को जिंदा रखने के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि 2020 में जो हुआ वो एक इन दोनों मुल्कों की मिलीभगत थी? मतलब एक एकतरफा अटैक नहीं था चाइना से, इनकी मिलीभगत थी, जुगलबंदी थी। क्या आप समझते हैं ये हो सकता है? मैं इस संबंध में कुछ प्री एम्प्ट नहीं करना चाहता।
और हमारी आंख तो सचमुच बिल्कुल जिसे कहा जाए ना, हमारी नजर तो बस चिड़िया की एक आंख पर होती है। जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस चाहे जो भी हो। वैसे हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। सर, बट टू फ्रंट वॉर के बारे में तो कई अरसे से बात चल रही है कि ये टू फ्रंट वॉर हो रहा है, होने की बात अलग है। ये टू फ्रंट वॉर हो रहा है, भले ही अटैक ना हो, लेकिन हर किस्म से, आप FATF में देख लीजिए, UN में देख लीजिए, किसी तरह से देख लीजिए, इन दोनों मुल्कों की जैसे एक जकड़ हो गई है, चाइना और पाकिस्तान, एक पियर्स ग्रिप जो। देखिए, पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, पाकिस्तान तो जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब से ही बराबर कुछ ना कुछ नापाक हरकतें सीमा पर उसके द्वारा की जाती रहती हैं। और सीज फायर वायलेशन का जहां तक सवाल है, 200, 250, 300, 400 बार बराबर वो सीज फायर वायलेशन कभी कभी महीनों में ही करता रहता है, सिलसिला जारी रहता है। लेकिन हमारे सेना के जवान बराबर उसको मुंहतोड़ जवाब देते रहते हैं। और भारत के जवानों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि केवल इस पार से ही नहीं, आतंकवाद का सफाया करने के लिए उस पार भी जाकर आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने की जरूरत होगी तो भारत कर सकता है। भारत के अंदर वह कुव्वत है, ताकत है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। आप क्रॉस बॉर्डर के लिए कह रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर जो मुझे कहना था वो कह दिया मैंने। रक्षा मंत्री जी, एक तरफ होता है कन्वेंशनल वॉर, एक तरफ होता है साइबर, एक तरफ होता है हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर में कई किस्म के टेक्निक्स अपनाए जाते हैं जी। और चाइना जो है, अभी हाल ही में अमेरिका ने दिखाया कि कैसे हाइब्रिड वॉर उनके खिलाफ चाइना ने किया था। मतलब चाइना के कुछ उनकी जो मेन पार्टी है, पार्टी के लोग जो हैं वो थिंक टैंक्स में बैठे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में बैठे हुए हैं, और वो अंदर से पार्टी का काम यानी चाइना का काम करते हैं दूसरे मुल्कों में बैठकर। और क्या वो हमारे यहाँ भी हो रहा है? हम जानते हैं कि आपकी सरकार ने कुछ एप्स बैन किए हैं, पर इसके आगे भी कुछ है? आपके पास कुछ ऐसी इंटेल तो आई होगी जो आप शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सही है कि चाइना भारत में भी ऐसे कोशिश कर चुका है, करने वाला है? वैसे दुनिया की जितनी भी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, साइबर वार, हाइब्रिड वार, इन सब सारे चुनौतियों को अच्छी तरह समझती हैं और उससे अपने देश को बचाने के लिए अथवा इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए वो अपनी व्यवस्था रखती हैं। अब भारत तो अब कोई कमजोर देश नहीं है, भारत ताकतवर देश है। भारत को भी इन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो सब भारत कर रहा है। मैं दुनिया के अन्य किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता कि वह कौन अमेरिका के साथ कर रहा है, कौन रूस के साथ कर रहा है, कौन किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है, इसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे वो साइबर वार हो, चाहे वो हाइब्रिड वार हो, इन सब सारे चैलेंजेस के खिलाफ जो कुछ भी करना चाहिए भारत तो कर रहा है, और आगे और जरूरत पड़ेगी तो भारत और करेगा। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि बहुत अरसे से लोग कहते हैं, मैंने आपका सवाल बहुत ही ठीक था, इसमें कहीं दो राय नहीं, कि इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट, कि इंडिया समझता है कि वो शांति चाहता है, इसलिए उसके खिलाफ कोई ऐसे अटैक्स होंगे नहीं, पाकिस्तान के अलावा और कोई करेगा नहीं। ये सॉफ्ट स्टेट टैग जो इंडिया को लगा हुआ है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, क्या ये सही है या आप समझते हैं कि ये गलत फहमी है? नहीं, सॉफ्ट स्टेट का क्या मतलब? तो सॉफ्ट तो हम हैं, लेकिन स्वाभिमान पर कभी चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। सॉफ्ट होने का मतलब यह नहीं होता है कि कोई हमारे ऊपर चोट करे, हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करे और हम चुप्पी साध कर और हाथ बांध कर बैठे रहें। ऐसा भारत नहीं रहा है। भारत किसी भी सूरत में अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता, और मैं पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ यह बात मैं कहना चाहता हूं, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत हमें क्यों नहीं चुकानी पड़े। सर, क्योंकि इस किस्म के वॉर में जो दुश्मन है वो वर्दी पहन के नहीं आता, इसलिए मालूम है, इसलिए उसकी पहचान करना मुश्किल है। और पहचान करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, लेकिन क्या हम में क्षमता है उसे
पहचानने की और ये जानने की और समझने की कि हमारे खिलाफ ऐसे वॉरफेयर शुरू हो चुका है? मुझे लगता है बहुत पुराने भारत की आप बात कर रहे हैं जी। अब इन समय इन सब सारे चैलेंजेस का भी मुकाबला करने की तैयारी भारत की है और भारत अपनी ताकत को और भी साइबर वार, हाइब्रिड वार, इन सब सारे चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए और अधिक ताकत बढ़ा रहा है भी हमारी ताकत इसमें। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम इस मामले में बहुत पीछे हैं। नेशनल सिक्योरिटी जो है हमेशा भारत में एक गवर्नमेंट रोल या गवर्नमेंट ड्यूटी माना जाता था। इसे एक नागरिक को जोड़ना, इसको एक नागरिक के साथ जोड़ना, आम नागरिक को जोड़ना कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हर नागरिक के लिए एक ड्यूटी है। ये कहने में, ये मैसेज देने में आपकी सरकार थोड़ी बहुत कामयाब रही है पिछले 6 साल में। क्या ये एक सोची समझी एक प्लान था, एक सोचा समझा प्लान था, या फिर ये आपके पार्टी में या आपके मे बी आरएसएस बैकग्राउंड या जो भी है, नेशनल सिक्योरिटी जो है इट्स इन योर नेचर? ये सही है? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में मैं चाहे पिछली सरकारें रही हूं, मैं किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। क्यों? किसी को नहीं, किसी क्यों को आप नहीं। नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर जो भी बन सका है सबने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर मेरा मानना है कि कहीं पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी किसी भी सूरत में नहीं चलना चाहिए। जब राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा हो तो सारे देश को सारे भेदभावों को भूलकर एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। जितना बन सका पिछली सरकारों ने किया और आज पिछले 6.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही है। और राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रखर और प्रबल भावना भारतवासियों के अंदर बहुत पहले से रही है। अब भारत के प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, मेडिवल हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री के पन्नों को पलट कर देखिए, बराबर जब भी अपने स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा हुआ है, भारत ने सदैव लड़ाई लड़ी है। हजारों वर्ष तक हम लड़ते रहे हैं। जहां आप कहते हैं कि देयर शुड बी यूनानिमिटी, हाँ, सभी पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि 2019 में चाइना ने देखा कि बीजेपी जो है या भारत अंदरूनी मसलों को लेकर इतने उलझन में पड़ गई थी, चाहे सीए हो, आर्टिकल 370 हो, ट्रिपल तलाक का हो। इंडिया वाज इन अ स्टेट ऑफ बबल और उसमें उन्होंने, चाइना ने एक विंडो देखा और हमला कर दिया। क्या ये सही है? तो इसमें आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी अब उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा और इस देश की परिस्थितियों का मूल्यांकन किस आधार पर किया, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सही क्या? लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 2014 के बाद चाहे जितनी भी बड़ी चुनौती आई हो, हमारे प्रधानमंत्री ने जिस हिम्मत के साथ और जिस संयम के साथ, जिस सूझबूझ के साथ काम किया है और उसमें कामयाबी हासिल की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। भारत कभी परेशान नहीं रहा इधर 2014 से लेकर आज तक 2020 समाप्त हो रहा है। इन 6.5 वर्षों में किसी चैलेंजेस को लेकर परेशान हुए हों, इस स्थिति में न तो अपनी प्रधानमंत्री को हमने देखा है, न उनकी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार को पाया है। कभी हम लोगों ने किसी चुनौती को लेकर एकदम बिल्कुल संयम नहीं खोया है। जी। मैं किसान आंदोलन पे आती हूं। अब आप यू हैव बीन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इसलिए आप जानते हैं इस इशू को। आपने बहुत करीब से देखा है जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है इस मुल्क की। आपके टेन्योर के दौरान आपने आई थिंक किसान चैनल शुरू किया था, किसान बहुत से प्राइसिंग के ऊपर भी आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उस समय इंटरेस्ट बिहारी वाजपेयी जी से अनुरोध किया था। तो पहले जहां 14 to 18% किसानों को अपने कर्ज पर ये इंटरेस्ट देना पड़ता था, तो उसमें बातचीत हुई थी। तो उस समय 8% पहली बार अटल जी के शासनकाल में ही ये हुआ था और उसमें मुझे भारत के कृषि मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला था। जी। अब किसान जो हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, उनकी डिमांड्स कई सारे हैं,
पहली डिमांड तो यह है कि आप ये कानून हटा दें, उन्हें काले कानून कहते हैं, वो हटा दें। इतने सारे हजारों किसान वहां पर हैं। आपकी सरकार ने कई टॉक्स किए, कई राउंड ऑफ टॉक्स किए, उन्हें न्योता दिया, बातचीत हो रही है, कई पॉलिसी डिसीजंस हुए हैं, कई ट्वीट्स जा चुके हैं, स्पीचेस हो चुके हैं, लेकिन आपकी पार्टी से कोई भी बॉर्डर पर नहीं गया हमदर्दी जताने के लिए। ऐसे क्यों लगता है कि आपकी पार्टी के लोग इनसेंसिटिव हैं? देखिए, हमारी पार्टी के किसान को लेकर इनसेंसिटिव होने का तो सवाल खड़ा ही नहीं होता। हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है। मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि जो तीनों यह बिल भारत की संसद द्वारा पास हुए हैं, कृषि संबंधित जो तीनों कानून बने हैं, वह किसानों के हित को, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए। और बराबर जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि मैं कैबिनेट का एक सीनियर मोस्ट मेंबर होने के नाते मैं कह रहा हूं कि उनके साथ बराबर हर मुद्दों पर बातचीत करने का मुझे अवसर भी मिला है। मैंने देखा है कि किसानों को लेकर बराबर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। और प्रारंभ से ही, और 2014 क्या, 2014 के पहले जब हम लोग कैंपेन के लिए जाते थे, चुनावी कैंपेन के लिए, उस समय भी कि देश के किसानों की हालत जब तक नहीं बदलेगी तब तक देश की हालत नहीं बदल सकती है। भारत को यदि धनवान भारत बनाना है तो भारत के किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा, यानी उनकी आमदनी को हमको बढ़ाना होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है और प्रारंभ से उनके द्वारा यह कोशिश की जा रही है। अब इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक सवाल है, आप पिछली सरकारों ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर वर्ष बढ़ाई है, कभी नहीं बढ़ाई है, लेकिन आप देखिए उस रेशियो में हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी बढ़ाई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जितनी परचेज पहले होती थी और अब कितनी हो रही है, कितने सारे आइटम्स की हो रही है, आंकड़े उठाकर देखिए तो पूरी तरह से बात साफ हो जाएगी। फिर एमएसपी को लेकर आप स्टेटमेंट, आप उसमें पॉलिसी में लाते क्यों नहीं है? लिख लीजिए कि एमएसपी नहीं हटाया जाएगा, इट्स नॉट देयर। नहीं, बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पहले भी कहीं एमएसपी था नहीं, पर अब जब नहीं वहम आ गया है तो फिर जब कोई व्यवस्था, मैंने पहले ऐसा था ही नहीं, व्यवस्था चली आ रही थी। और आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम सब सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम अपने ऐसे वचन से मुकर कैसे जाएंगे? लोकतंत्र में जो अपनी वचन से मुकर जाता है उसे तो अच्छी तरह की अच्छी सजा यह जनता दे सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार उसे प्राप्त है। जो हम कह रहे हैं उस वचन को पूरा करेंगे और आगे बढ़कर पूरा करेंगे। और तीनों कानूनों के माध्यम से यह कोशिश की गई है कि किसानों की आमदनी 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, जितनी अधिक से अधिक हो सके बढ़े। हां, जैसा मैंने पहले कहा कि किसान धरने पर बैठे हैं, सचमुच हम जैसे लोगों को भी वेदना है। आप उत्तर प्रदेश के भी किसानों से पूछिए। मैं मुख्यमंत्री जब था तो उस समय भी बड़ी हुजूम, टिकैत साहब के साथ भी हमारे पास लखनऊ में गए हुए थे। मैंने उनका स्वागत किया, अगवानी की, उनसे बातचीत की, समस्या का समाधान निकला था। आज भी हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। हमारे कृषि मंत्री से नरेंद्र सिंह तोमर और उनके साथ हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल, ये सब सारे लोग बैठे हैं, सारे अधिकारी बैठे हैं, बातचीत चल रही है। हमारा तो अपने किसान भाइयों को एक सुझाव होगा कि हर एक्ट के हर क्लाज पर तार्किक एक बहस होनी चाहिए, तर्कों के साथ। और जहां पर यह लगेगा कि यह किसानों के हितों के प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है, तो जो भी आवश्यक होगा हमारी सरकार करेगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जैसा मैं प्रधानमंत्री की मंशा को जानता हूं जी, किसानों के हितों के ऊपर हम किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचने देंगे। मैं यह बात दिल की गहराइयों से कह रहा हूं। पर ऐसे लगता है अब ये तर्क वितर्क से आगे बढ़ चुका है, क्योंकि किसान अड़ गए हैं कि अब या तो हटेगा ये कानून या मतलब जब तक हटेगा नहीं हम नहीं हटेंगे। यहां बातचीत हो रही है और मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ समाधान उसका निकलेगा, यह मेरा विश्वास और भरोसा है। और मैं हाथ जोड़कर अपने किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिल को मैंने भी स्वयं देखा है, कृषि मंत्री भी रह चुका हूं और
कृषि जगत की बहुत सारी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ भी हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह किसानों के हित में है। एक बार कम से कम 2 साल तक एक प्रयोग करके आप देखें तो कि यह तीनों जो कानून कृषि संबंधित हैं वह किसानों के लिए कितने उपयोगी हैं, देखें तो उसके बाद आपके साथ बैठने को हम लोग तैयार हैं। आप बैठिए, आप जहां जहां कहेंगे आवश्यक संशोधन करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। और आज भी हमारे किसान भाई बैठे हैं, किसी एक्सपर्ट को बैठाना चाहते हैं एक्सपर्ट को बैठा लें, सरकार के साथ बातचीत हो और बातचीत के द्वारा यदि यह निकलता है कि नहीं इन कानूनों को फला क्लाज में संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसके लिए भी हमारी सरकार तैयार है। हम पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हैं। हम केवल सरकार के लिए सरकार नहीं चला रहे हैं, हम देश के लिए, गरीब के लिए, देश के किसानों के लिए, देश की जनता के लिए सरकार चला रहे हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे देश की जनता के हितों के प्रतिकूल हो, उसके खिलाफ हो। ऐसा काम हम कभी नहीं कर सकते। जी, आप हमदर्दी, आप संवेदनशीलता के बारे में कह रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के ही कुछ लोग किसानों को लेबल दे रहे हैं, नक्सल कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं। क्या आप मैं समझता हूं कि किसानों के ऊपर इस प्रकार का कोई भी आरोप कोई भी हो, पता नहीं किसने क्या कहा है, मुझे जानकारी नहीं है, नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन उसे हमारा किसान किसान है, हम किसान के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते हैं और हर समय भारत के किसानों के प्रति हमारा सिर झुका हुआ है उनके सामने, उनके सम्मान में। वो हमारे अन्नदाता हैं। और जब भी आर्थिक संकट का दौर इस देश में आया है तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम यदि किसी ने किया है तो इस देश के किसानों ने किया है। लेकिन इकोनॉमिक रिसेशन का दौर, आर्थिक मंदी का दौर आया है, उस समय भी आप अर्थशास्त्रियों से बातचीत करिए, वह इस बात की जानकारी आपको देंगे। तो सचमुच हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है हमारा किसान, कृषि, यह रीढ़ है। राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए सिख भाइयों ने जितना बड़ा बलिदान दिया है उसे भारत कभी भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता। Welcome back. Breaking news. It is coming in the UK strain update. Well, so far the number of people infected with the UK strain in India has increased to 20. Till Tuesday, this number was only at 6. A total of 107 samples have been tested so far, 20 of which have been found to be infected with the UK mutant strain of the coronavirus. So maximum 8 out of 20 positive cases have been found at a lab in Delhi. Sukirti joins us with the very latest. Sukirti, what more can you tell us? Well, yes, until yesterday the figure stood at 6, but today a total of 20 cases. While it is right that the lab in Delhi has the maximum number of positive samples for the UK strain, which is at 8 out of these 20, but the government has still not given any clarity where these 20 people are from in terms of segregation of which are the states that these people are residents of. So these are the labs. So far the government is giving out only numbers of which are the labs where these samples are being found positive. And also, like the figure has increased from 6 to 20 today, this number could go up further, could not go up further. So that's still there's that possibility, but the likelihood of the number going up is there because there were at least 33,000 passengers that returned from UK from about mid-November to the date till the UK flights were banned about 23rd December. And all of these 33,000 passengers are still being dragged. Many of them, those who have symptoms, they are being tested also with an RT-PCR test. So that process is still on. And as you see, even in terms of genome sequencing, only 107 samples have been tested for genome sequencing so far, while the government had said that 114 people have tested positive so far. So even the genome sequencing process, the testing process, all of these processes are ongoing at the moment. And while there are 20 cases so far, the number could go up further as well.
Right. Appreciate you, Sukirti, for joining us for the very latest. So as Sukirti is pointing out, 107 samples have been sent for genome sequencing till Tuesday. Remember, only 6 people had tested positive for the UK COVID variant, and that number has now increased to 20 in the country. So 8 out of 20 positive cases have also been reported in the national capital alone. We'll keep a close watch on these developments. Meanwhile, the government of India has reiterated that early intervention to control the spread of the mutant strain is key. The government has warned against New Year's parties and also said that the current vaccine will work and one can expect good news soon. Listen in. सर्दी का मौसम है, अभी भी जहां तक हमें डेटा मालूम है बहुत सारी पॉपुलेशन ससेप्टेबल है, आएगा वायरस पकड़ सकता है, पास ही है कहीं। यूके का एक नया म्यूटेशन आया है जो कि कंटेजियसनेस दिखाता है क्लासिकल वायरस से ज्यादा। एक कंसर्न हमारे सामने पेश करता है। इन अ वे इट वाज एक्सपेक्टेड कि ऐसी म्यूटेशन हो सकती है, छोटी छोटी होती ही रहती हैं, लेकिन जब आया है तो क्लियरली एक डिस्टेबलाइज करता है हमारी तैयारी को, हमारे सिस्टम को। दिस पर्टिकुलर वायरस स्ट्रेन may have its own run and we have to be very, very careful, very careful. Please also remember that in a situation when the virus, a new virus or a new type of virus enters, it is easy to suppress that virus in the beginning. जब बहुत ज़्यादा चेन हो जाती हैं, मल्टीपल चेन चल पड़ती हैं ट्रांसमिशन की, फिर उसको काबू करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, हमने देखा है ये। So an important development is the establishment of INSA-COG, which is a consortium of 10 government labs across the country to do genome sequencing of the SARS virus as well as any variant of that virus. These labs belong to ICMR, DBT, CSIR and Ministry of Health and Family Welfare. Prior to the news of the UK variant came in our country we had done roughly 5,000 such genome sequences across these labs. Now we will be significantly increasing that number and would be working in a coordinated manner in the shape of a consortium. Now, amid the new COVID strain, superstar Rajinikanth has decided not to enter electoral politics. In a statement, Rajinikanth, who was discharged from hospital just days ago, said, "With extreme sadness, I say that I can't enter politics. I alone know the pain I went through while announcing this decision. This decision of mine will disappoint my fans and people, but please forgive me. I will serve the people without entering electoral politics. My hospitalization was like a warning from God. My campaign will impact my health amid the pandemic. I thank office bearers for working with me." Citing a warning from God, superstar Rajinikanth is opting out of electoral politics 2 days before he was expected to make an announcement 5 months before state elections. "I regret to say that I am unable to start a party and come to politics. Saying this is giving me pain that only I can know." Rajinikanth has blamed his health amid the COVID pandemic for what he called a painful decision. In a 3-page statement, Rajinikanth referred to his recent hospitalization at Hyderabad and said, "I see all this as a warning given by God. This at a time when a new corona variant is on its way as a second wave." Pointing out that BP fluctuations will adversely affect his kidney transplant, he said, "Even with vaccine, I may not be able to cope as I take immunosuppressants." Rajini's friend, fellow actor Kamal Haasan, who launched his political party, says he is disappointed. பிரச்சார பயணம் முடிந்த பிறகு சென்னை சென்றவுடன் அவரை மீண்டும் சந்திப்பேன். என்னை பொறுத்தவரை அவர்கள் ரசிகர்களின் மனோநிலை தான் எனக்கு சற்றே ஏமாற்றம் இருந்தாலும் அவருடைய ஆரோக்கியம் எனக்கே மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். The AIADMK, that many said may lose votes to Rajinikanth if he made his political debut, hopes Rajini will back the ruling party as he wants MGR-type rule. அவருடைய உடல்நிலை அவர் முக்கியம், அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு வரவேற்கத்தக்கது. அவருடைய உடல்நிலையை கருதி அவர் சொல்றாரு, அதைத்தான் நம்ம பார்க்கணும். இதில் அரசியல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Rajinikanth has once again invoked God to say God has won and therefore he's quitting. Like in the 1997 film Arunachalam, his character says, "Aandavan solran, Arunachalam mudikiran," meaning God dictates and Arunachalam gets it done.
Rajnikant has for the last 25 years played Kabhi Haan, Kabhi Na. A few fans and admirers disappointed that he has not done an MGR or an NTR. But he manages to retain his aura as he is not rejected by the people. With camera person Nagraju, Uma Sudhir, NDTV. Well, with the economic distress brought in by the COVID-19 pandemic, there's been an emergence of a massive unknown network of online loan sharks. After cases of death by suicide of at least 4 people unable to cope with the humiliation and harassment through digital channels, the Telangana police has started a massive crackdown. NDTV's Uma Sudhir spoke with the police commissioner. Listen in. There is one call center running in Pune where there are 600 employees by name Jia Leong Call Center. So, along with the search warrant, our team has gone to Pune on Saturday, and with the help of Pune police, they conducted raid on the call center. And there they found that this call center is a service provider of 3 companies, one based in Mysore, one based in Thane, and one based in Mumbai. And basically, their job of this call center is to make the threatening call to the customers who have taken small loan and take money from them. And without the knowledge of customer, they are depositing money sometimes and taking, then in return, taking extra money from them by defaming them. In fact, these apps are made in such a way, whenever the customer takes the app, he is giving them permission to use his contact list. So by default, that contact list is going to these people who are running this app. So in the contact list, whoever are there, so they are getting the messages that so-and-so your friend, he's a defaulter, he's a chore. So this kind of defamation they are doing of this person, and you know that recently in the state of Telangana, 3 persons, they committed suicide because of this kind of harassment. We have to do the further investigation, knowing that what are the connections of the China basically in this Chinese language, and the Chinese origin person is also involved in this racket. So further investigation will be required. Similarly, these 3 places where they have prepared the 16 apps actually for the this money. So these 3 places, Thane, Mumbai and Mysore, where these companies are located, there also we are going to send our team. Now, Delhi dipped to 3.6 degrees, the second lowest of the season on Tuesday. Temperature is expected to dip by another 1 or 2 degrees, and the minimum temperature on New Year's Eve could be as low as 2 degrees in the national capital. For now, temperatures in Amritsar and Ludhiana is colder than Mussoorie. Cold wave conditions are expected to abate post the 1st of January, so temperatures will start to rise, but another spell of snowfall is expected between the 4th and 6th of January.